Okay, so let's solve the seventh question. It says an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Okay. So what it says is there are 616 soldiers, okay, and that soldiers need to march behind a band of 32 members. So the size of contingent is, so question number 7, the size of contingent is 616 and the size of band, it is 32. Now they need to march in the same number of columns, okay, they need to march in the same number of columns, means the number of columns for this army band and for this army contingent should be same, okay. For example, if this band is marching in front, okay, and after this should be the contingent. The number of columns that the band is marching, that number of columns should be same for the contingent also, okay. Means if the band is marching in, let us say, 5 columns, then the contingent should also march in the 5 columns, okay. If the contingent is marching in 2 columns, if band is marching in 2 columns, then the contingent should also march in 2 columns, okay. So I will say that I need to determine the contingent and the number of columns in which this band and this contingent is marching. Now each column should have the same number of soldiers, okay, each column should have the same number of soldiers, then only in the parade, in the army parade, you will see a uniformity in their marching. So each column of the soldiers should have the same number of soldiers. Now the band and the contingent should have the same number of columns also. So if I talk about 616 contingent, 616 soldiers and 32 members of band, then I can make the column, okay, I can make the column of one person. I can make the column of one person. Now what does this mean? So one means they can march in single column. Single column means all the 32 members of the band are marching in one column and behind them all the 616 members of this contingent are marching in one column. But is it the maximum number of columns? No, obviously not. I can also make the columns as 2. I can make 2 columns, means I can march these 32 band members in 2 columns and the 616 contingent, this soldiers, also in 2 columns. So if I make 2 columns of the band, then each column will contain 16 members, and if I make 2 columns of the soldiers, each column will contain 308 members, okay. Now is the 2 maximum number? क्या मैं मैक्सिमम सिर्फ 2 कॉलम्स ही बना सकता हूं? क्या 2 से ज्यादा भी कॉलम्स बना सकता हूं? लेकिन हाँ, कॉलम्स ऐसे होने चाहिए जो कि इसको भी प्रॉपरली डिवाइड करें, पूरी तरह से डिवाइड करें इन 32 सोल्जर्स को, और इन 616 सोल्जर्स को भी पूरी तरह से डिवाइड करें, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. तो हम देख सकते हैं कि हम 2 की जगह पे 4 सोल्जर्स के कॉलम्स भी बना सकते हैं. 4 सोल्जर्स, यहां पर मैंने अगर 32 मेंबर्स के 4 कॉलम्स बनाए तो हर एक कॉलम में कितने मेंबर्स होंगे? 8. और यहां पर अगर मैंने 616 मेंबर्स के 4 कॉलम्स बनाए तो हर एक कॉलम में कितने मेंबर्स होंगे? इट विल बी 104, ओके, सॉरी 154. सो आई विल से कि ये 4 के कॉलम्स में भी मार्च कर सकते हैं. क्या 4 से भी बड़ा कोई नंबर है जो कि जिस नंबर ऑफ कॉलम्स में ये मार्च कर सके? क्या 4 से भी बड़ा ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके?
Okay, I need to determine a number which can divide both 616 as well as 32. Now I want to maximize the columns. It means I want to maximize this number which can divide both the numbers. Now try to understand it from mathematical point of view. I want to determine a number, okay, I want to determine a largest number which can divide this 616 soldiers as well as this 32 members. So I will say ultimately the number for maximum number of columns, so maximum number of columns will be equal to the HCF of 616 and 32. Okay, ultimately the HCF of 616 and 32 will give you the maximum number of columns. Okay, because हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 616 को भी पूरा डिवाइड करे और 32 को भी पूरा डिवाइड करे, मतलब हमें इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स चाहिए, लेकिन हमें कॉलम्स को मैक्सिमाइज करना है, मतलब हमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर चाहिए, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ यू नो हाउ टू डिटरमाइन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग द डिविजन एल्गोरिथम. You can apply the division algorithm here and you can solve this question very easily. Okay, so I will not solve this question further, and this completes question number 7. You can solve it yourself, it's very easy. Now let us move to question number 8. Question number 8 says, using Euclid's division lemma to show that the square of, okay, use the Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Okay, so what the question says is, use the Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer, square of any possible positive integer. Now how many types of positive integers are available? I will say I have two types of positive integers, either it is odd positive integers or it is even positive integers. I have these two types of positive integers only. Okay, so the positive integer should be of the form, to show that the square of any positive integers is either of the form 3m or it is of the form 3m plus 1. Okay, means the square of the positive integer. I am not talking about only the positive integer, it's like the square of positive integer. So how should I start? How should I start this question? Okay, it clearly says it's 3m and 3m plus 1. It means I can apply the Euclid's division lemma. Question number 8. I need to prove that square of positive integers is 3m or 3m plus 1. Either it is 3m or it is 3m plus 1. Only these two possible values. Okay, so let us start the proof. How should I prove? सबसे पहली चीज जो हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि ये 3m है या फिर 3m plus 1 है और हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइजर हमें 3 दिखाई दे रहा है, दोनों ही केसेस में 3 दिखाई दे रहा है. सो व्हाट आई विल से इज लेट a इज अ नंबर. मैं मान लेता हूं कि a कोई नंबर है. ओके, एंड b इज इक्वल्स टू 3. मैं एक नंबर मानता हूं a और एक नंबर मानता हूं b, दैट इज इक्वल टू 3. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड दिस a by this 3 by applying the Euclid's division lemma. Okay, by applying Euclid's division lemma, by applying Euclid's division lemma, what I will say is I will divide this a by 3. If I divide this a by 3,
it means I get some quotient and finally I will get some remainder. मतलब a में q मल्टीप्लाई करने पे कुछ वैल्यू आएगी, उसे a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, you will finally get r. So r is the remainder. So according to Euclid's division lemma, I will say that a is equals to 3 times q plus r. A is equals to 3 times q plus r. Now, what are the possible values of r? If I ask you what are the possible values of r, I can see this division. In this division, the divisor is 3. If the divisor is 3, then the possible values of r can be 0, 1 or 2. क्योंकि मेरा डिवाइजर 3 है, इसीलिए पॉसिबल वैल्यूज इस रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2. सो अगर मेरे पास इस 3 तरह के रिमाइंडर्स अवेलेबल हैं, सो आई कैन से कि a का वैल्यू हो सकता है 3q प्लस 0, या फिर a का वैल्यू हो सकता है 3q प्लस 1, या फिर a का वैल्यू हो सकता है 3q प्लस 2. तो हम कहेंगे all the positive integers, okay, a is a positive integer. हमने माना है a is a positive integer. Okay, now a can be 3q plus 0, a can be 3q plus 1, a can be 3q plus 2, because किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता. तो ये 3 पॉसिबल जो हमने टर्म्स लिखी हैं, ये तीनों नंबर्स, ये तीनों पॉसिबल एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को. ओके, लेट मी रिपीट व्हाट आई सेड. मैंने कहा ये a की जो हमने 3 वैल्यूज लिखी हैं, these 3 expressions are representing all possible positive integers. ओके, ये 3 से डिवाइड, हर किसी इंटीजर को मैं 3 से डिवाइड करूं तो वो इनमें से ही किसी ना किसी फॉर्म का होगा. अगर वो 3 से पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 देगा, अगर 3 से सिर्फ 1 ज्यादा है तो 1 देगा, 3 से सिर्फ 2 ज्यादा है तो वो 2 देगा, और फिर से लिया तो 3 से वापस से डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज 3 से 3 ज्यादा मतलब 0 ज्यादा. ओके, सो आई विल से रिमाइंडर इज 0. सो नाउ this is the form of all possible positive integers, but the question says you need to prove that square of positive integer. So if a is equals to 3q plus 0, अगर हम पहला केस लेते हैं, अगर a 3q plus 0 है, मतलब ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हैं, then by squaring हम इनका स्क्वायर करेंगे, तो बाय स्क्वायरिंग a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर हो जाएगा. ओके, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, वेयर दिस q इज व्हाट, q इज एन इंटीजर, q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, q एक पॉजिटिव इंटीजर है. नाउ a स्क्वायर क्या है, 3q का होल स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर. मैं इसे लिख सकता हूं 3 times of 3q square. I can write it as 3 times of 3q square. Now see this value, q is an integer, so q square ये भी एक इंटीजर है, q square में 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी एक इंटीजर बनेगा. It means I can say 3q square is an integer. 3q square पूरा क्या है, एक इंटीजर है. तो मैं कहूंगा let 3q square is equals to m. So I will say that this a is equals to 3 times of m. तो हमने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 3 से पूरी तरह डिविजिबल हैं, उनके स्क्वायर को प्रूव कर दिया 3m. ओके, उन्हें क्या प्रूव कर दिया, 3m के बराबर प्रूव कर दिया. वेयर m is what, m is an integer, m is any integer, कोई भी इंटीजर पॉसिबल है. ओके, और 3q स्क्वायर इंटीजर था, इसीलिए 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया. सो इट इज a इज इक्वल्स टू 3m. नाउ ये हुई फर्स्ट कैटेगरी. सेकेंड कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सी है, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1. ओके, इफ a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ये है हमारे पास सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स. नाउ अगर हम इसका स्क्वायर करें, सो a स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 1 का whole square. So by squaring it will give you 9q square plus
3 into 2 is 6q plus 1. Okay, now I can write this as, now take 3 common from these two values, it will give you 3 to the bracket 3q square plus 2q plus 1. ओके, क्या करा हमने, इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर करके हमें ये एक्सप्रेशन मिला. इस एक्सप्रेशन में से शुरू के दो टर्म्स में से मैंने 3 को कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q. ओके, नाउ 3q स्क्वायर ये एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, तो q और 2, q इंटू 2 ये अगेन एक इंटीजर है. तो मैं देख सकता हूं ये पूरा एक्सप्रेशन, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज एन इंटीजर. ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, एक इंटीजर है. अब अगर ये पूरा एक्सप्रेशन एक इंटीजर है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अज्यूम लेट m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q. मैं m को मान लेता हूं 3q स्क्वायर प्लस 2q. सो इन प्लेस ऑफ 3q स्क्वायर प्लस 2q आई विल राइट m. सो आई विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ m प्लस 1. मुझे a स्क्वायर का क्या वैल्यू मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ m प्लस 1. ये हो गया a स्क्वायर का वैल्यू. मतलब ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 3 के मल्टीपल से सिर्फ 1 ज्यादा हैं, उनको मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, उनके स्क्वायर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, 3m प्लस 1. ओके, तो 2 केसेस कंप्लीट हुए. थर्ड केस क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2. नाउ अगर मैं यहां पर स्क्वायर करता हूं, आई विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर. ओके, नाउ दिस विल गिव यू 3q का होल स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर. ओके, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2, सो 3 2 6, 6 2 12q प्लस दिस 2 का स्क्वायर मतलब 4. मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूं. ओके, नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू write this expression as 9q square plus 12q plus 3 plus 1. बड़े ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने इस 4 को 3 plus 1 के फॉर्म में लिख दिया. ओके, नाउ अगर मैंने इसे 3 plus 1 के फॉर्म में लिखा, I can take 3 common from this expression. In the bracket it will become 3q square plus 4q plus 1 and this is plus 1. Now observe the bracket. This bracket represents an integer. यह ब्रैकेट भी एक इंटीजर बता रहा है. So what I will do is I will let 3q square plus 4q plus 1 को m मान लेता हूं. Then I will get a square is equals to 3 times of m plus 1. तो मुझे a स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ m प्लस 1. यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, उन्हें एक्सप्रेस कर दिया, उनके स्क्वायर को एक्सप्रेस कर दिया 3m प्लस 1 के फॉर्म में. तो जो भी पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो या तो हमने 3m के फॉर्म में एक्सप्रेस करें या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करें. ओके, so I can see square of positive integers is 3m or 3m plus 1. In this manner I have proved this condition. Okay, so this is the solution for 8th question. इसे note करिए, then we will continue. Okay, let us now solve the 9th question. It says use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. Okay, so what the question says is, what we need to prove in this question is we need to prove that cube of any positive integer can be expressed as 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. मतलब मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को इस
इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, मैं इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, कोई भी एक फॉर्म होगा, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जाए, वो इनमें से किसी एक फॉर्म का होगा, उसका क्यूब इनमें से किसी एक फॉर्म का तो होगा ही होगा। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। सो फॉर दैट लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मैं a को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेता हूं एंड आई विल यूज डिवीजन लेमा, फॉर a एंड b इज इक्वल्स टू 3। मैं b को 3 मान के और a को यूज करके, a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करता हूं। मतलब मैंने a को 3 से डिवाइड करा, a को 3 से डिवाइड करने पे कुछ क्वोशिएंट आएगा और फाइनली डिवीजन के साथ एक रिमाइंडर आएगा। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस रिमाइंडर, एंड आई टोल्ड यू दैट 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। 3 रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है, सो r कैन ओनली बी 0 और 1 और 2, इनमें से ही कोई पॉसिबल है। तो a का वैल्यू हमने कहा था कि a का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो a 3q प्लस 0 हो सकता है, या फिर a 3q प्लस 1 हो सकता है, या फिर a 3q प्लस 2 हो सकता है। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इस एक्सप्रेशन का सिंपल सा ये मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लीजिए 1 से लेके इंफिनिटी तक, वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में जरूर होगा। ओके, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेंगे, वह इन तीनों में से किसी ना किसी फॉर्म में जरूर एग्जिस्ट करेगा। ओके, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 3q प्लस 0 के फॉर्म में आते हैं, मतलब ये वह इंटीजर्स हैं जो कि 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हैं। तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 रिप्रेजेंट करता है ऐसे इंटीजर्स जो कि 3 से पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं। ओके, बिकॉज रिमाइंडर क्या आता है, 0। सो हमारे पास सबसे पहला केस है केस 1, when a is equals to 3q plus 0। अब हमें प्रूफ करना है कि इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इनमें से किसी एक एक्सप्रेशन को मिलता है, इनमें से किसी एक एक्सप्रेशन को मैच करता है। सो a का वैल्यू कितना है, 3q plus 0। आई विल क्यूब बोथ द साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, I will get a cube is equals to 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब। a क्यूब का वैल्यू कितना आया, 27 q टाइम्स क्यूब। ओके, इसे मैं लिख सकता हूं 9 टाइम्स 3q क्यूब। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 27 में से 9 को बाहर निकाल लूं तो 9 टाइम्स 3q क्यूब। ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस, q क्या है, एक इंटीजर है। क्यों? क्योंकि q इज द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट हमेशा इंटीजर रहता है, जब तक हम डेसिमल इंट्रोड्यूस नहीं करते तब तक क्वोशिएंट क्या है, एक इंटीजर है। तो q एक इंटीजर है, तो q की पावर 3 ये भी एक इंटीजर है, और उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी एक इंटीजर है। तो मैं कहूंगा कि इन ऑल ये कंप्लीट वैल्यू एक इंटीजर है, और क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू एक इंटीजर है, मैं कहूंगा इसको मैं कुछ अलग इंटीजर नाम से मान लेता हूं। लेट m इज इक्वल्स टू 3q टू द पावर 3। सो आई विल से a क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 9 टाइम्स m। तो हमने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 3 से डिविजिबल हैं उन्हें एक्सप्रेस कर दिया, उनके क्यूब को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ 9m। मतलब वह सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब जो कि 3 से डिविजिबल हैं, उनकी सभी के क्यूब कैसे होंगे, 9 टाइम्स m के फॉर्मेट में होंगे। ओके, सिमिलरली इसमें आप कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं q का वैल्यू 1 रखता हूं, या फिर q का वैल्यू 2 रखते हैं। तो 2 रखा तो a कितना हो गया, 3 2 जा 6।
तो 6 क्या है, 6 एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप 6 का क्यूब करिए, इट विल बी 216, ओके, इट विल बी 216। नाउ इफ यू डिवाइड 216, if you divide 216 by 9, 9 2s are, it will be 18, so 21 minus 3 it will give you 36, so it is 4, okay। तो हम कहेंगे 216 जो 6 का क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल इफ a is equals to 6, ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो a का क्यूब कितना हुआ 216। इस 216 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 9 into 24, सो 24 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब मैंने इस a क्यूब को, इस 6 के क्यूब को 9 times 24 इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया। तो ऐसे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 3 से डिविजिबल हैं, उनका क्यूब हमेशा 9 times m के फॉर्मेट में ही होगा, ओके, दिस इज अ कंपल्शन। नाउ सेकेंड तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, जो कि 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, जैसे कि 4, जैसे कि 7, ओके, जैसे कि 13, जैसे कि 10, जैसे कि 19, ओके, इस तरह के नंबर्स क्या हैं, जब आप इनको 3 से डिवाइड करेंगे यू विल फाइंड कि रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्यूब करके देखते हैं। सो केस 2, इफ a is equals to 3 क्यूब प्लस 1, ओके, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। So by cubing both sides, I will get a cube is equals to 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। नाउ a क्यूब का वैल्यू आया 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहां पर हमें इस 3 क्यूब प्लस 1 को होल क्यूब, इसको एक्सपांड करना है, तो आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी होल क्यूब की, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, ओके। ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, या 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, ओके, किसी भी टर्म में अरेंज कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम हेयर I will get a is equals to, a cube is equals to 3q का क्यूब, 3q is 27 क्यूब, ओके, प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब दैट इज 1, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1, ओके। इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूं, दिस इज a क्यूब b क्यूब a, दिस इज 3ab स्क्वायर, दिस इज 3a स्क्वायर b। इसे मैं लिख सकता हूं 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9q प्लस दिस इज 3 3 जा 9, 9 3 जा 27q स्क्वायर, ओके। सो फ्रॉम दिस मैं क्या लिख सकता हूं, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब मैं इस स्टार्टिंग के टर्म्स में से 9 को कॉमन निकालता हूं, इन ब्रैकेट आई विल गेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ओके, सॉरी प्लस 1 बाहर की तरफ आएगा। नाउ सी, q सभी में इंटीजर है, 3 सभी में इंटीजर है, मैं कहता हूं कि ये पूरा एक्सप्रेशन एक इंटीजर है, ये पूरा एक्सप्रेशन एक इंटीजर है, और क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन एक इंटीजर है, मैं मान सकता हूं लेट m इज इक्वल्स टू 3q टू द पावर 3, 3q टू द पावर 2 प्लस 3q। सो आई विल से दैट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज 9m प्लस 1, ओके। सो ये 9m प्लस 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, उनका क्यूब हमेशा इस तरह के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, उनका क्यूब हमेशा इस तरह के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर मान लेता हूं, लेट अस से a इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 4 इस तरह का नंबर है, ओके। आई कैन राइट a इज इक्वल्स टू 4 इन दिस फॉर्मेट, मतलब मैं 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर में 1 आएगा। इसका अगर मैं क्यूब करता हूं,
सो ए क्यूब कितना हो गया 64। 64 को मैं लिखता हूं 63 प्लस 1। ओके, 63 को मैं लिखता हूं 9 टाइम्स 7 प्लस 1। सो यू कैन सी 64 that is the cube of 4 can be written as 9 times m 9 times 7 plus 1। इस फॉर्मेट में मैं a क्यूब को लिख सकता हूं। ओके, सो 4 का इसी तरह से क्यूब निकाला तो वो 9 टाइम्स 7 प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। इसी तरह से आप 7 का निकालिए, इसी तरह से आप 10 का निकालिए। ओके, इसी तरह से आप 13 का निकालिए। कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए जो कि 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो और उनका क्यूब निकाल के देखिए, आपको दिखेगा कि सभी नंबर्स इस तरह के फॉर्मेट में आ रहे हैं, जैसा कि ये a इज इक्वल्स टू 4 पे हमें दिखाई देता है। ओके, सो यहां पर हमने a इज इक्वल्स टू 4 लेके इसे चेक कर लिया कि ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है ये सही है। अब हम केस 3 पे आते हैं। केस 3 एंड लेट अस रब दिस पार्ट ऑल्सो, हम इसे भी रब करते हैं। सो केस 3 क्या है? केस 3 में a का वैल्यू है 3q प्लस 2, ये वाला वैल्यू। ओके, 3q प्लस 2। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूं, सो बाय क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स a क्यूब हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ओके, अगेन हम यहां पर यही आइडेंटिटी लगाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q होल स्क्वायर, सॉरी 3q होल क्यूब प्लस 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q into 2 square. Okay, now this will give you 27q to the power 3 plus 2 cube is 8 plus 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 into 2 is 54q square plus this is 4, 4 into 3 is 12, 12 into 3 is 36 and into this is q. सो मैं लिख सकता हूं a क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 27q टू द पावर 3 प्लस 54q टू द पावर 2 प्लस 36q प्लस 8। ओके, प्लस 36q प्लस 8। सो इस एक्सप्रेशन में से अगर मैं 9 को कॉमन निकालता हूं, अगर इन 3 टर्म्स में से सबसे पहले मैं 9 को कॉमन निकालूंगा, सो ये बनेगा 3q टू द पावर 3 प्लस दिस इज 54, सो ये हो जाएगा 6q टू द पावर 2 प्लस दिस इज 36, सो 36 बचेगा 4q। ओके, प्लस 8 अलग से लिखे रहेंगे। नाउ ये ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है आप देख सकते हैं, ये सभी क्या है इंटीजर्स हैं। q इंटीजर है, 3, 6 एंड 4 ये सभी इंटीजर्स हैं। तो इन ऑल ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या है? ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक इंटीजर है। और अगर ये पूरा ब्रैकेट एक इंटीजर है, सो आई कैन से दैट दिस इंटीजर, फॉर दिस इंटीजर लेट m is equals to 3q to the power 3, 6q to the power 2 plus 4q. Okay, अगर ऐसा है, so I can say the value of a cube is 9 times m plus 8. a cube का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 9 times m plus 8. 9 times m plus 8. तो हम कहेंगे कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 3 के मल्टीपल्स से 2 ज्यादा हैं। ओके, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हैं। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, उनके क्यूब को मैंने एक्सप्रेस करा है 9m plus 8 के फॉर्मेट में। ओके, फॉर एग्जाम्पल 5 को लेट अस से a इज इक्वल्स टू 5। हम मानते हैं कि a का वैल्यू 5 है।
अगर a 5 है तो a क्यूब कितना है? a क्यूब इज 125. Now I can write 125 as 100 and this will give you 117 plus 8. I can write it as 117 plus 8. Now check 117. अब आप 117 को चेक कीजिए, इसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे. You will get 9 times 13 plus 8. Observe it very carefully. क्या लिखा मैंने? मैंने a को एक ऐसा नंबर माना जो कि 9 के मल्टीपल से 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है. 3 plus 2, ओके, दैट इज 5. इसी तरह से 3 3 जा 9 होता है, तो 9 plus 2 मतलब 11. तो a का वैल्यू अगर 5 है तो a क्यूब 125 है. 125 को मैंने 117 plus 8 लिख दिया. 117 इज 9 into 13. तो हम देख सकते हैं a क्यूब कैसा लिखा हुआ है? 9m plus 8, मतलब इस तरह के फॉर्मेट में. ओके, सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 9. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में क्लियर होते हैं. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. लिखने में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, लेकिन समझने के लिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. ओके, सो प्लीज यू कैन नोट दिस, देन वी विल कंटिन्यू.